Good evening, Ankush. Welcome to the 60 Minutes English for Hindi Speaker Show. Good evening, Govind. Welcome to the 60 Minutes English for Hindi Speaker Show. Today I am going to explain you the topics, the posts that I have posted during the last week, and every Sunday I come live, and every Sunday there is a live show in which I explain all the posts that I have posted during the last week. So keep learning, keep attending the sessions. Welcome you all to the 60 Minutes English for Hindi Speaker Show. Very soon we are going to begin, and I'm not going to waste a lot of time. Thank you very much for showing up. Thank you very much for your valuable time, all of you. How are you doing? How are you doing, all of you? How are you doing? Welcome, Shivani. How are you doing? Just put in the comment box how you are all doing. How was your day? Good evening, Payal. Nice to see you. Ganesh, good evening. Nice to see you all. How are you all doing? Please let me know in the comment box. Please let me know. Please let me know how are you all doing. Very soon we are going to begin the session. Till then, let's have some conversation. Let's talk a little bit. Yeah, my question is, Ganesh, my question is, how are you doing? How are you doing means आप कैसे हो? How are you doing means आप कैसे हो? और आपका जो जवाब है वो है इस सवाल का जवाब है what are you doing? आपने जो जवाब दिया है वो किस सवाल का जवाब है? What are you doing? इसका जवाब आपने दिया I am attending your lecture. But good try, no problem. कोशिश करते रहिए, गलती करते रहिए, गलती करोगे तभी सीखोगे. ओके, सो गणेश, द क्वेश्चन इज हाउ आर यू डूइंग, यानी कि आप कैसे हो? हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड शिवानी, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच. आई एम गुड. सो गणेश, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हो? हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू डूइंग इस सवाल के जवाब मैंने आपको सिखाया किस तरीके से आप जवाब दोगे जब आपको कोई पूछे कि कैसे हो. गुड, फाइन, ग्रेट, ऑसम, फंटास्टिक, फैबुलस, मार्वलस, आउटस्टैंडिंग, ये सारे जवाब आप दे सकते हो. या फिर आप बोल सकते हो आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सैड, और नॉट बैड. ऐसा कोई जवाब आपका हो सकता है जब आपको कोई पूछे कि आप कैसे हो. ओके, आई एम फाइन, गुड गुड, दैट्स ग्रेट. ओके, fine. So let's begin with the session. In this session you are going to learn around more than 20 new sentences, 20 new words, 20 new example sentences for all those words with their meanings, and all these words and sentences will be useful in your day-to-day life. Okay, so let's begin. The sentence number 1 is do not lean on the wall. Do not lean on the wall. Prajakta, I'm good, thank you very much. Let's begin the session. Hope you're all ready for the session. You have your notebooks and pens ready. So start noting down the sentences, whatever you're learning. Note down the sentences, note down the meanings, and start using these sentences whenever you need them. जब भी ज़रूरत पड़े इन sentences को use करना शुरू कर दीजिए. Okay, and keep reading every day. At least once in a week you should read the sentences that you're learning in this session. इस सेशन में जो कुछ भी आप सीख रहे हो वो नोट डाउन करते रहिए और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहिए. अगर भूल जाए तो आप फिर से उसको कभी कभी पढ़ लिया करो. Okay, so the first sentence for the day is do not lean against the wall. Do not lean against the wall. Now here the new word is L-E-A-N, lean. L-E-A-N, lean. Lean का मतलब होता है झुकना, अपर बॉडी को झुकाना. या तो आप साइड में झुका रहे हो, पीछे झुका रहे हो, या फ्रंट में झुका रहे हो, उसको बोलते हैं लीन करना. सो डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल. डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल. तो यहाँ इस सेंटेंस का मीनिंग होगा कि दीवार का सहारा मत लो. झुक करके कोई दीवार का सहारा लेता है तो आप बोल सकते हो डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल. डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल. अगर आप किसी को कहना चाहते हो दीवार का सहारा मत लो, अभी अभी पेंट किया है, इसका सहारा मत लो. डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल. डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल. या फिर आपके सिर का जो तेल है ना, वो ऑयल लगाते हैं बालों में, वो दीवार को लग जाएगा, तो डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल. डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल. नेक्स्ट सेंटेंस इज अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम. Understand the delicacy of time.
सो गाइस पुट इन द कमेंट बॉक्स लीन का मीनिंग, आप लीन लिखिए, उसके आगे उसका मीनिंग लिखिए, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो स्ट्रांग होगी, आप याद रख पाओगे. लीन यानी टू मूव द टॉप ऑफ योर बॉडी एंड हेड फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स और टू द साइड. आप हिंदी में मीनिंग लिख सकते हो अगर इतना आपको याद नहीं रहेगा. लीन यानी झुकना, लीन यानी झुकना. जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आपको वर्ड ज्यादा देर तक याद रहेगा. लर्निंग अच्छी होगी जब आप उसको नोट डाउन करोगे. कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी बुक्स में लिखिए और आगे सीखते रहिए. कम ऑन. द सेंटेंस नंबर 2 इज अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम. अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम. Understand the delicacy of time. Now here the word delicacy means nazakat. It's an Urdu word, एक उर्दू वर्ड है नजाकत, जिसका मीनिंग होता है किसी नाजुकता. इन हिंदी भी से नाजुकता, किसी सिचुएशन की नाजुकता को समझिए, नजाकत को समझिए. अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम. समय की नजाकत को समझिए, वक्त की नजाकत को समझिए. अंडरस्टैंड द डेलिकेसी. नजाकत का मीनिंग होता है किसी चीज का नाजुकपन जो होता है उसको हम बोलते हैं नजाकत. सो समय की नजाकत को समझिए. अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम. अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम. वेल डन ऑल ऑफ यू गाइज. कीप लर्निंग. डेलिकेसी, DELICACY. डेलिकेसी का मीनिंग होता है नाजुकता. नो, समय की नाजुकता को समझिए. अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम. अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम. समय की नजाकत को समझिए, वक्त की नजाकत को समझिए. ओके, पुट इन द कमेंट बॉक्स डेलिकेसी. स्पेलिंग ऑफ डेलिकेसी इज DELICACY. डेलिकेसी. ओके, सो डेलिकेसी का मीनिंग होता है नाजुकता या नजाकत या कोमलता. ओके, come on. The next sentence. Sentence number 3. Put in the comment box delicacy and its meaning. Delicacy and its meaning. Put in the comment box. Delicacy का meaning होता है नजाकत या नाजुकता. Okay. Next one is. Now delicacy इस word के कुछ और meanings है. I want to explain you. Delicacy का एक meaning हो गया नाजुकता. Delicacy का दूसरा meaning अब हम सीखने जा रहे हैं. यहाँ डेलिकेसी का दूसरा मीनिंग होता है अ टाइप ऑफ फूड दैट इज कंसिडर्ड पर्टिकुलरली गुड. किसी विशेष प्रकार का खाना है, किसी एक एरिया में विशेष प्रकार की कोई डिश चलती हो, बहुत लोग उस चीज को खाते हो या फिर बहुत फेमस वो डिश हो, तो उसको हम कहते हैं डेलिकेसी. डेलिकेसी. ओके, सो अनदर मीनिंग फॉर डेलिकेसी इज कोई फेमस डिश, किसी एरिया की कोई फेमस डिश, उसको हम बोलेंगे डेलिकेसी. नाउ हियर वन एग्जांपल सेंटेंस. अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उसको शेगांव की डेलिकेसी जो है, हमारे गांव की जो डेलिकेसी है वो होती है शेगांव कचौरी. नाउ वी ऑफर देम आवर शेगांव कचौरी एंड वी से दिस इज द डेलिकेसी, दिस इज द लोकल डेलिकेसी, ट्राई दिस डिश, इट्स अ लोकल डेलिकेसी. नाउ यहाँ डेलिकेसी का मीनिंग नाजुकता नहीं है, बल्कि यहाँ इसका मीनिंग है हमारे यहाँ की विशेष प्रकार की एक डिश, कोई स्वादिष्ट व्यंजन, डेलिकेसी. नाउ डेलिकेसी का दूसरा मीनिंग हुआ कोई स्वादिष्ट व्यंजन, कोई खाने का कोई पदार्थ जो स्वादिष्ट हो, किसी एक एरिया में स्पेशली ज्यादा चलता हो. अ फेमस डिश, यू कैन से डेलिकेसी मीन्स अ फेमस डिश, अ फेमस डिश. ओके, सो एग्जांपल सेंटेंस. ट्राई दिस डिश. ट्राई दिस डिश. इट्स अ लोकल डेलिकेसी. इट्स अ लोकल डेलिकेसी. ये हमारे यहाँ की डेलिकेसी है, ये हमारे यहाँ का स्वादिष्ट व्यंजन है, खाकर देखिए. ट्राई दिस डिश. ओके, come on. Next, so understood the meaning of another meaning of delicacy. The first one was nazukta, the second one is कोई स्वादिष्ट खाने वाली चीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फेमस हो. राइट, डेलिकेसी, स्पेशल डिश. ओके, नेक्स्ट वन इज अगेन डेलिकेसी, इसी वर्ड से रिलेटेड. अगर कोई चीज बहुत नाजुक हो, डेलिकेसी का मीनिंग हमने देखा नाजुकता. अगर कोई चीज नाजुक हो तो हम उसको बोलेंगे डेलिकेट. अगर कोई चीज बहुत नाजुक है तो उसे हम कहते हैं डेलिकेट. ओके, सो हियर इज वन एग्जांपल सेंटेंस जहां डेलिकेट इस वर्ड का इस्तेमाल है. आई बॉट अ डेलिकेट पेयर ऑफ ग्लासेस. अगर आप कहना चाहते हो मैंने एक बहुत ही नाजुक चश्मा खरीदा है. आई बॉट अ डेलिकेट पेयर ऑफ ग्लासेस. आई बॉट अ डेलिकेट पेयर ऑफ ग्लासेस. आई बॉट अ डेलिकेट पेयर ऑफ ग्लासेस. नाउ यहाँ डेलिकेट का मीनिंग है कोई नाजुक सा चश्मा, राइट, जिसकी फ्रेम बहुत ही नाजुक हो और दिखने में बहुत अच्छा हो. डेलिकेट. डेलिकेट का मीनिंग नाजुक.
Delicacy means नाजुकता. Delicate यानी कि नाजुक. Okay. I bought a delicate pair of glasses. I bought a delicate pair of glasses. Good evening, Sakshi. Come on. Keep learning. Put in the comment box whatever you learn. जो भी आप सीख रहे हो examples बना के आप comment box में डालिए, या आप word और उसका meaning comment box में डालिए, ताकि आपकी learning strong होगी, आप उसको भूलोगे नहीं. Delicacy मतलब नाजुकता, नजाकत. Delicacy मतलब special dish. And delicate means nazuk. Delicate means nazuk. Now you can say the flower pot is delicate. The flower pot is delicate. ये flower pot बहुत ही delicate है, बहुत ही नाजुक है. Handle it with care. Handle it with care. Okay. Next one. So I bought a delicate pair of glasses. मैंने एक बहुत ही नाजुक चश्मा खरीदा. Okay, glasses, pair of glasses यानी चश्मा. Okay. Next one. Now another example using delicate. Another example using delicate. यहाँ इसका थोड़ा slight different meaning होगा. A situation or a matter. कोई situation या कोई matter जो बहुत carefully handle किया जाना चाहिए. बहुत carefully handle किया जाना चाहिए. क्योंकि अगर उसको carefully handle नहीं किया गया तो या तो कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है, या फिर किसी को बुरा लग सकता है. ऐसी सिचुएशन को या ऐसे मैटर को हम कहते हैं डेलिकेट मैटर. अ डेलिकेट मैटर. ओके. सपोज हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाता है तो बहुत ही डेलिकेट मैटर होता है. आप एक इंसान की साइड लोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तो बहुत डेलिकेट मैटर वो होता है. किसी दो लोगों के बीच के झगड़े में अगर आप जाकर के कुछ बोलते हो तो दैट्स अ डेलिकेट मैटर. कोई भी बुरा मान जाएगा. एक इंसान की साइड लोगे, दूसरा इंसान बुरा मान जाएगा. सो ऐसे सिचुएशंस को हम बोलते हैं डेलिकेट मैटर. थोड़ा सा कुछ गलत बोल दिया, बात बिगड़ जाएगी. थोड़ा सा आपने कुछ गलत बोल दिया, उस मैटर में बात को बिगड़ जाने के चांसेस ज्यादा है. तो अब आप कह सकते हो कि वो मैटर, वो सिचुएशन बहुत ही डेलिकेट है. ओके. सो हियर इज एन एग्जांपल. वी आर डिस्कसिंग ऑन अ डेलिकेट मैटर. वी आर डिस्कसिंग ऑन अ डेलिकेट मैटर. ओके. द मैनेजर कॉल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस अपॉन अ डेलिकेट मैटर. किसी एक नाजुक विषय के ऊपर. अगेन यू कैन से नाजुक विषय, बहुत नाजुक है, थोड़ा कुछ गलत बोल दिया, बहुत बड़ा पंगा हो सकता है, बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, या कोई बुरा मान सकता है. ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं डेलिकेट. ओके. सो वी आर डिस्कसिंग ऑन अ डेलिकेट मैटर. एक बहुत ही डेलिकेट मैटर यानी कि नाजुक कोई सिचुएशन है जिसके ऊपर आप डिस्कस कर रहे हो, तो आप बोलोगे वी आर डिस्कसिंग ऑन अ डेलिकेट मैटर. ओके. नेक्स्ट वन इज किसी की सेहत. अगर किसी की सेहत नाजुक है, मतलब बहुत जल्दी वो इंसान बीमार गिर जाता है, तो उस इंसान को भी हम बोलते हैं, उसकी सेहत अगर नाजुक है तो आप बोल सकते हैं ही इज इन डेलिकेट हेल्थ. 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 उसकी सेहत बहुत ही नाजुक है. ही इज इन डेलिकेट हेल्थ. ही इज इन. थैंक यू अब्दुल कादिर. थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग अप. थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स. ही इज इन डेलिकेट हेल्थ. इन डेलिकेट हेल्थ यानी कि जिसको बहुत आईसीयू में कोई इंसान है, सपोज फॉर एग्जांपल इंटेंसिव केयर यूनिट में उसको एडमिट किया गया क्योंकि कोई एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से उसको बहुत सीरियस उसकी सेहत है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो. अगर कोई बहुत ही सीरियस है, किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो हम बोल सकते हैं ही इज इन डेलिकेट हेल्थ. ही इज इन डेलिकेट हेल्थ. ही इज इन डेलिकेट हेल्थ. ओके. Okay, come on, let's move ahead. Keep putting in the comment box. Delicate health यानी कि नाजुक सेहत. Delicate health यानी कि नाजुक सेहत में, अगर कोई बहुत नाजुक सेहत में, तबीयत किसी की बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप कह सकते हो गंभीर हालात है किसी की, हम बोलते हैं बहुत गंभीर हालात है. He is in a delicate health. Okay, next one. Again, the delicate handicraft works. The delicate handicraft works. The delicate handicraft works. Will not bear rough handling. Will not bear rough handling. यहां दो वर्ड्स आप नए सीख सकते हो. Delicate handicraft works. Delicate handicraft works. Now delicate handicraft works का मीनिंग होता है हाथ से बनाई हुई कोई चीज, कोई हाथों की कला से बनाई हुई चीज को हम बोलते हैं डेलिकेट, नाजुक. हैंडीक्राफ्ट हाथों से बनाई हुई चीज. ओके. डेलिकेट हैंडीक्राफ्ट वर्क. Delicate handicraft works will not bear rough handling. Will not bear rough handling. Will not bear rough handling. मतलब rough handling को बर्दाश्त नहीं करेंगे. अगर आप उसको
केयरफुली हैंडल नहीं करते हो तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? रफ हैंडलिंग करते हो। उठा के पटक दिया किधर भी कोई भी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं रफ हैंडलिंग। तो ये चीज़ें जो हाथों से बनी हुई बहुत नाजुक है, और इसको अगर आप अच्छे से हैंडल नहीं करोगे, रफली हैंडल करोगे, तो ये नाजुक चीज़ें उस रफ हैंडलिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। डेलिकेट हैंडीक्राफ्ट वर्क्स विल नॉट बेयर यानी कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, विल नॉट बेयर बर्दाश्त नहीं करेंगे, विल नॉट बेयर टूट जाएंगे, विल नॉट बेयर। ओके, डेलिकेट हैंडीक्राफ्ट वर्क्स विल नॉट बेयर रफ हैंडलिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हाथों से बनाई हुई कोई सिरेमिक की पेंटिंग है, या फिर मैंने कोई फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लावर पॉट बनाया अपने हाथों से, और अब उसको तो नाजुकता से आपको हैंडल करना होगा, केयरफुली हैंडल करना होगा। अगर रफली हैंडल करोगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो बेयर का मीनिंग होता है BEAR, बेयर। अगर आप इंस्पायर के स्टूडेंट हो, आपने लेवल 1 में सीखा होगा BEAR, बेयर यानी भालू भी होता है, और BEAR, बेयर का दूसरा मीनिंग जो मैं आज आपको बता रहा हूं वो है बर्दाश्त करना। बेयर यानी बर्दाश्त करना। सो अगर आप कहना चाहते हो कि मैं ये बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कैनॉट बेयर दिस नॉनसेंस, आई कैनॉट बेयर दिस नॉनसेंस, आई कैनॉट बेयर दिस नॉनसेंस, मैं ये बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कैनॉट बेयर दिस नॉनसेंस। इसी को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, आई कैनॉट पुट अप विथ, आई कैनॉट पुट अप विथ। राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, बेयर यानी बर्दाश्त करना, बेयर यानी बर्दाश्त करना। आई कैनॉट बेयर दिस नॉनसेंस, मैं ये बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कैनॉट बेयर दिस नॉनसेंस। ओके, नेक्स्ट, another way to say मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, you can say I cannot put up with, I cannot put up with, I cannot put up with, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, I cannot put up with। Come on guys, keep commenting, कमेंट करिए और देखिए वो चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी। ओके, डेलिकेट हैंडीक्राफ्ट, you can say बर्दाश्त करना यानी बेयर, राइट डाउन, बेयर यानी बर्दाश्त करना, सहन करना, और अनदर वे टू से बर्दाश्त करना, पुट अप विथ। तो अगर आप कहना चाहते हो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कैनॉट पुट अप विथ, आई कैनॉट पुट अप विथ, और फिर बता सकते हो किस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। मुझे बोलना है कि मुझे ये सरदर्द बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैं कहना चाहता हूँ मुझे ये सरदर्द बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं कहूंगा आई कैनॉट पुट अप विथ दिस हेडेक, आई कैनॉट पुट अप विथ दिस हेडेक, आई कैनॉट पुट अप विथ दिस हेडेक। कम ऑन, कीप पार्टिसिपेटिंग, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनिए, जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे उतना ज्यादा सीखोगे। ओके, आई कैनॉट पुट अप विथ दिस हेडेक, मैं ये सरदर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जो भी लिख सकते हो, अगर आप सिर्फ मीनिंग लिख सकते हो, पुट अप विथ का मीनिंग है बर्दाश्त करना, तो वो लिखिए। अगर आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हो, आई कैनॉट पुट अप विथ दिस हेडेक, तो वो लिखिए, या फिर आप अपना सेंटेंस बनाकर भी लिख सकते हो। कोशिश करिए, आई कैनॉट पुट अप विथ this nonsense, I cannot put up with this headache, I cannot put up with this noise, I cannot put up with this noise, I cannot put up with your behavior, I cannot put up with your behavior, मैं आपका behavior बर्दाश्त नहीं कर सकता, I cannot put up with your behavior। So put down all the possible examples you can make, जितने भी examples आप बना सकते हो, just put them down in the comment box। Okay, come on, next let's move ahead। नाउ अगर आप कहना चाहते हो कि इसके पिताजी की तबीयत बहुत ही नाजुक हो चुकी है, उम्र ज्यादा हो गई, इस वजह से उनके पिताजी की तबीयत बहुत नाजुक हो चुकी है, तो अनदर वर्ड फॉर डेलिकेट, डेलिकेट के लिए दूसरा वर्ड हो सकता है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल। ओके, कम ऑन, फ्रेजाइल का मीनिंग भी है नाजुक, फ्रेजाइल का मीनिंग भी होता है नाजुक। वीक और इन पुअर हेल्थ, फिजिकली और मेंटली, फिजिकली या मेंटली अगर कोई इंसान सेहतमंद नहीं है, उसकी सेहत कमजोर है, तो आप कह सकते हो ही इज इन अ फ्रेजाइल हेल्थ, ही इज इन फ्रेजाइल हेल्थ, ही इज इन फ्रेजाइल हेल्थ। सो हियर इज एन एग्जांपल, हर फादर इज नाउ 86, हर फादर इज नाउ 86। अब उसके पापा 86 ईयर्स के हो चुके हैं, हर फादर इज नाउ 86, हर फादर इज नाउ 86। अगर आपको कहना चाहते हो, अगर आप कहना चाहते हो कि वो 90 साल का हो गया, आप कह सकते हो ही इज 90, ही इज 90, ही इज 90 ईयर्स ओल्ड, ऐसे भी कह सकते हो ही इज 90 ईयर्स ओल्ड, या आप कह सकते हो ही इज 90।
Her father is now 86 and in fragile health. And in fragile health. Fragile. So, Vipda, please note down. Fragile, fragile health. Her father is now 86 and he is in fragile health. He is in fragile health. यानी कि सेहत उनकी खराब हो चुकी है, बहुत बीमार रहता है हमेशा. ही इज इन फ्रेजाइल हेल्थ. उनकी हालत एकदम नाजुक है. ही इज इन फ्रेजाइल हेल्थ. नेक्स्ट वन, अगर आप कहना चाहते हो कि ये फ्लावर पॉट जो है थोड़ा नाजुक है तो थोड़ा ध्यान से हैंडल कीजिएगा, तो आप कहोगे बी केयरफुल विद द वेस. बी केयरफुल विद द वेस. VASE, वेस. वेस को आप बोल सकते हो फ्लावर पॉट. ओके, बी केयरफुल विद दैट वेस. बी केयरफुल विद दैट. Once again I repeat the spelling. Fragile. 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 Yeah, that's correct. Shivani, that's correct. Okay. So be careful with that vase. It's very fragile. It's very fragile. It's very delicate. आप ऐसे भी कह सकते हो it's very delicate या it's very fragile. बहुत ही नाजुक है, थोड़ा ध्यान से हैंडल कीजिएगा. Okay. Come on. So now the word vase, VASE, vase. VASE, vase. It can be pronounced in two ways. In British English, it is pronounced as vase. In British English, it is pronounced as vase. And in American English, it is pronounced as vase. In British English, it is pronounced as vase. And in American English, it is pronounced as vase. Now the question is, हमने क्या pronounce करना चाहिए? हम Indians हैं. अब हम American English use करें या British English use करें? It's totally up to you. Now the thing is, जब तक आप इंग्लिश बोलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि वो वर्ड अमेरिकन इंग्लिश है या ब्रिटिश इंग्लिश है. बस आप इंग्लिश बोलिए. और जिस वक्त आप अच्छी तरह फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे तो कोशिश करिए कि किसी एक टाइप की इंग्लिश से आप जुड़े रहे, या तो टोटली अमेरिकन इंग्लिश या तो टोटली ब्रिटिश इंग्लिश. सो नाउअडेज यू कैन से अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा फेमस है, तो यू कैन गो विद अमेरिकन इंग्लिश ऑलवेज. और इतना डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड, वेदर इट इज ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड और अमेरिकन इंग्लिश वर्ड, वेदर द प्रोनाउंसिएशन इज ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और एन अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन. सो यू कैन जस्ट गो विद द वर्ड दैट व्हाटएवर यू नो. जिस तरीके से आप जानते हो, आपको वेस याद आता है वेस बोलिए, वास याद आता है वास बोलिए. वास एंड वेस बोथ आर करेक्ट. ओके, कम ऑन. सो द हॉर्स, नेक्स्ट सेंटेंस इज द हॉर्स इज lame. Next sentence is the horse is lame and cannot work. The horse is lame and cannot work. The horse is lame and cannot work. ये जो घोड़ा है लंगड़ा है और काम नहीं कर सकता. Now the word lame, यहाँ lame का मीनिंग होता है लंगड़ा. Lame का मीनिंग होता है लंगड़ा, और स्पेशली जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाला यह वर्ड है. इंसानों को आप lame नहीं कह सकते. Okay? The horse is lame and cannot work. The horse is lame and cannot work. यह घोड़ा लंगड़ा है और काम नहीं कर सकता. The horse is lame and cannot work. So note down in the comment box, LAME, lame मतलब लंगड़ा. The horse is lame and cannot work. Okay? Come on, let's move ahead. अब अगर कोई इंसान है जो लंगड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे? Can you guess? Can anybody tell me the answer? Can you guess? अगर कोई इंसान है जो लंगड़ा है तो उसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जानवरों को तो हम लेम कह सकते हैं किसी इंजरी की वजह से, या किसी LAME, लेम, LAME, लेम. ओके, लेम मीन्स लंगड़ा. द हॉर्स इज लेम, राइट. अ लेम हॉर्स मीन्स एक लंगड़ा घोड़ा. ओके, किसी इंजरी की वजह से अगर वो लंगड़ाते हुए चलता है या वो लंगड़ा है, वो चल नहीं पाता है, तो आप कह सकते हो द हॉर्स इज लेम. द हॉर्स इज लेम एंड कैनॉट वर्क. कैनॉट डू वर्क नहीं, कैनॉट वर्क. कैनॉट डू वर्क बोलने की आवश्यकता नहीं है. वर्क खुद एक वर्ब है, तो आपको डू वहां यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं. यू कैन जस्ट से कैनॉट वर्क. ओके,
Kiran, nice to see you after a very long time. Keep learning. I'm teaching new sentences here, and whatever you learn, put in the comment box. जो भी आप सीख रहे हो comment box में डालते जाइए. Okay? Handicap होता है अपाहिज. Handicap जिसका हाथ टूटा है वो भी handicap हो सकता है. जरूरी नहीं कि उसका वो लंगड़ा होगा. Okay? So nearly ठीक है, handicap बोल सकते हो. किसी लंगड़े इंसान को आप बोल सकते हो he is handicapped. लेकिन हैंडीकैप का मीनिंग लंगड़ा नहीं होगा. अगर आपको बोलना है कि वो चल नहीं पा रहा है, लंगड़ाते हुए चल रहा है, तो आप कहोगे ही इज अ क्रिपल. ही इज अ क्रिपल. CRIPPLE क्रिपल. CRIPPLE क्रिपल. ओके. क्रिपल मीन्स समवन हु इज अनेबल टू वॉक नॉर्मली. क्रिपल मीन्स समबडी हु इज अनेबल टू वॉक नॉर्मली. जो नॉर्मली नहीं चलता है, थोड़ा सा उनकी चाल अलग हो जाती है क्योंकि उनको पैर में कहीं चोट लगी थी, या उनका पैर टूटा हुआ है, या फिर किसी कारण से वो ढंग से नहीं चल पाता है, तो उनको हम बोलते हैं क्रिपल. ओके. सो द डिफरेंस बिटवीन हैंडीकैप एंड क्रिपल इज, क्रिपल होता है जो चल नहीं पा रहा है ढंग से, वो क्रिपल, और हैंडीकैप यानी कि अपाहिज. अभी अपाहिज इंसान किसी भी तरीके से हो सकता है. कुछ लोग दिमाग से अपाहिज होते हैं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो निगेटिव सोचते हैं, तो ऐसे इंसान को भी हैंडीकैप ही माना जाएगा. ओके. मेंटली हैंडीकैप्ड. फाइन. सो आप फिजिकली हैंडीकैप हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट व्हेन यू आर मेंटली हैंडीकैप, जो आपकी सोच अपाहिज जैसी हो, तो वो बड़ी प्रॉब्लम है. ओके. सो इट इज, एग्जाम्पल देखते हैं. इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट फेयर, ऐसे भी बोल सकते हैं. इट इज नॉट फेयर टू मेक फन ऑफ अ क्रिपल. इट इज नॉट फेयर टू मेक फन ऑफ cripple. It is not fair to make fun of cripple. Cripple यानी लंगड़ाते हुए चलने वाला इंसान. Okay? Come on. Now, lame इस वर्ड का दूसरा मीनिंग अभी देखते हैं. पहला मीनिंग था लंगड़ा, कोई जानवर के बारे में यूज होता है lame. cripple यूज होता है कोई इंसान जो लंगड़ा हो, और lame यूज होता है किसी बहाने के लिए, कोई ऐसा बहाना जो सुनने में सच्चा नहीं लगता हो, जो सुनकर ही पता चल रहा है कि झूठ बोल रहा है. कोई ऐसा बहाना जो सुनकर ही पता चल रहा है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है. तो सबसे बड़ा लेम एक्सक्यूज होता है जब आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है. सबसे बड़ा लेम एक्सक्यूज होता है जब आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है. मेरे पास टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ा लेम एक्सक्यूज है. इसके ऊपर मैं कभी भी भरोसा नहीं करता. जब कोई लोग बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये सबसे बड़ा झूठ होता है. और एक झूठा बहाना होता है लेम एक्सक्यूज, यानी ऐसा बहाना जिसके ऊपर जल्दी भरोसा नहीं होता हमको. ओके. सो एग्जाम्पल इज, शी पुट मी ऑफ विद अ लेम एक्सक्यूज. शी पुट मी ऑफ विद अ लेम एक्सक्यूज. उसने मुझे झूठा बहाना देकर टाल दिया. शी पुट मी ऑफ विद अ लेम एक्सक्यूज. उसने मुझे झूठा बहाना देकर टाल दिया. शी पुट मी ऑफ विद अ लेम एक्सक्यूज. ओके. नेक्स्ट वन, लेट्स मूव अहेड. सो यहां लेम का मीनिंग क्या हुआ? झूठा बहाना. लेम एक्सक्यूज. पुट इन द कमेंट बॉक्स लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना. लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना. ओके. शी पुट मी ऑफ विद अ लेम एक्सक्यूज. उसने मुझे झूठा बहाना देकर टाल दिया. नहीं. लेम का मीनिंग ये नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है. मैं बता रहा हूं कि लेम का मीनिंग है झूठा बहाना, और सबसे बड़ा झूठा बहाना होता है मेरे पास टाइम नहीं है. अंडरस्टूड गणेश? लेम का मीनिंग ये नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है. लेम का मीनिंग है, लेम एक्सक्यूज का मीनिंग होता है झूठा बहाना, कोई ऐसा बहाना जिस पे जल्दी भरोसा नहीं होता. राइट. और झूठे एक्सक्यूज है, झूठे बहानेबाजी को हम कहते हैं लेम एक्सक्यूज. तो सबसे बड़ा झूठा बहाना होता है जब आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है. ये सबसे बड़ा झूठ होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है. टाइम हर किसी के पास होता है, सिर्फ हमारी प्रायोरिटीज अलग अलग होती है. इस वजह से हम उन कामों को करने के लिए बहाना ढूंढ लेते हैं, और अपने आप से झूठ बोलते हैं, दुनिया को झूठ बोलते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है. क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है. तो ये सबसे बड़ा झूठा बहाना होता है, मेरे पास टाइम नहीं है. टाइम सभी के पास है. जो काम आप करना चाहते हो उसके लिए टाइम निकाल लेते हो. ओके. कम ऑन. लेम एक्सक्यूज है ना, झूठा बहाना. नेक्स्ट सेंटेंस इज, नाउ पुट somebody off का मीनिंग. पुट somebody off. पुट somebody off का मीनिंग होता है किसी को इंतजार करवाना बहुत देर तक, क्योंकि आप उनसे मिलना नहीं चाहते. पुट somebody off का मीनिंग होता है किसी को बहुत देर तक इंतजार करवाना क्योंकि आप उनसे मिलना नहीं चाहते.
पुट somebody off, बहुत देर तक इंतजार करवाना क्योंकि आप उनसे मिलना नहीं चाहते. So here is an example. When he calls, जब उसका कॉल आएगा, when he calls, put him off as long as you can. Put him off as long as you can. जितना हो सके उसको इंतजार करवाओ. जब उसका कॉल आएगा, जितना हो सके उसको इंतजार करवाओ. जब उसका कॉल आएगा, जितना हो सके उसको इंतजार करवाओ, क्योंकि मैं उससे बात नहीं करना चाहता. ओके, है ना? कम ऑन. मेरे पापा बोल रहे हैं कि वो घर पे नहीं है. है ना? मैं मेरे बेटे को बोल दूं कि जब उसका कॉल आएगा ना, तो उसको जितना हो सके उतना इंतजार करवा रहा हूं. When he calls, put him off as long as you can. When he calls, put him off as long as you can. अपने बेटे को मैंने बोल दिया कि जब उसका कॉल आएगा तो उसको जितना हो सके इंतज़ार करवाना. तो मेरे बेटे ने फ़ोन उठाया, बोल दिया कि मेरे पापा बोल रहे हैं कि वो घर पे नहीं है. मेरे पापा बोल रहे हैं कि वो घर पे नहीं है. ओके, come on. She put me off with a lame excuse. When he calls, put him off as long as you can. When he calls, put him off as long as you can. Okay? So यहाँ off की spelling होगी OFF. 2 F आएंगे इसमें. OFF. Put him off. किसी को बहुत लंबे समय तक इंतजार करवाना क्योंकि आप उनसे मिलना नहीं चाहते. किसी ने आपका पैसा उधार ले लिया ना, तो वो इंसान आपको बार बार जब आप उसके घर जाओगे पैसे मांगने के लिए, आपको वो हमेशा इंतज़ार करवाएगा. ओके, तो किसी को पैसा उधार देते हो तो याद रखना, क्योंकि लोग जब पैसा उधार लेते हैं तो वो खुद आपसे मिलने आता है. जब आप पैसा उधार दे दो तो फिर उनके पास टाइम नहीं होता आपको मिलने को, वो आपको इंतज़ार करवाता है. ओके, पुट समबडी ऑफ. सो कैन यू, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा होगा आपकी लाइफ में कि आपने किसी को पैसा उधार दे तो दिया, लेकिन जब मांगने के लिए आप गए वापस तो उसने आपको बहुत देर इंतजार करवाया, है ना? तो आप बोल सकते हो ही पुट मी ऑफ फॉर 5 hours. ही पुट मी ऑफ फॉर 5 hours. उसने मुझे 5 घंटे इंतजार करवाया. ही पुट मी ऑफ फॉर 5 hours. ओके, कम ऑन. सो नेक्स्ट वन इज he gave her a smashing reply. He gave her a smashing reply. He gave her a smashing reply. Now यहाँ smashing का मीनिंग होता है मुंह तोड़ जवाब देना. smashing का एक्चुअल मीनिंग है impressive या बहुत अच्छा. very good और impressive. smashing, very good और impressive. smashing, smashing, very good और impressive. So he gave her a smashing reply. उसने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया. He gave her a smashing reply. He gave her a smashing reply. उसने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया. He gave her a smashing reply. Smashing, impressive और very good. Okay, come on, let's move ahead. Smashing का मीनिंग लिखिए, impressive और very good. ओके, या हिंदी में लिख सकते हो स्मैशिंग. इंप्रेसिव, वेरी गुड भी हो सकता है, और दूसरा इसका मीनिंग हो सकता है मुंह तोड़ जवाब दिया. ही गेव हर अ स्मैशिंग रिप्लाई. मुंह तोड़ जवाब दिया. मुंह तोड़, स्मैशिंग रिप्लाई, मुंह तोड़ जवाब. राइट. सो द नेक्स्ट फ्रेज इज टू गिल्ड अ लिली. टू गिल्ड अ लिली. टू गिल्ड अ लिली. टू गिल्ड अ लिली. आखिरी तक रुकिएगा, आखिरी तक, क्योंकि जब ज्वाइन करते हैं ना, देखो रेस की शुरुआत में 100 लोग रहेंगे, रेस के अंत तक एक विजेता रहेगा. सो वही विजेता की पहचान होती है, अंत तक रुकना. टिल द एंड यू हैव टू टेक एफर्ट्स. ओके, इफ यू स्टे टिल द एंड यू विल बी इन द 1% क्लब. यू विल बी इन द 1%, 2%, कुछ लोग बोलते हैं 2% क्लब, कुछ बोलते हैं 1% क्लब. तो बहुत, इसका मीनिंग अल्टीमेटली इतना ही है कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो किसी भी चीज को अंत तक करते हैं. राइट, पूरा अपना 100% देकर के पार्टिसिपेट करते हैं. स्टे टिल द एंड, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग. ओके, टू गिल्ड अ लिली, GILD, गिल्ड. टू गिल्ड अ लिली. टू गिल्ड अ लिली. टू गिल्ड अ लिली. नाउ गिल्ड का मीनिंग होता है सोने का पानी चढ़ाना, है ना? कोई चेन है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल कोई चांदी की चेन है जिसको आपने सोने का पानी चढ़ा दिया, तो आपने उसको क्या किया? गिल्ड किया.
GILD, गिल्ड, गिल्ड, सोने की पॉलिश चढ़ाना किसी चीज पे, गोल्ड की पॉलिश चढ़ाना किसी चीज पे, ओके, गिल्ड। और यहां इस सेंटेंस में टू गिल्ड अ लिली का मीनिंग यह है कि किसी ऑलरेडी बहुत सुंदर चीज को और अच्छा बनाने की कोशिश करना, कोई अच्छी चीज को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करना। टू गिल्ड अ लिली, टू गिल्ड अ लिली, किसी ऑलरेडी अच्छी चीज को और बेहतर बनाने की कोशिश करना। टू गिल्ड अ लिली, टू गिल्ड अ लिली। To gild a lily, okay? So example, you have good bone structure, you have good bone structure, तुम्हारा हड्डी का ढांचा अच्छा है, bone structure अच्छा है, okay? And you have good bone structure and lovely skin, तुम्हारी skin भी बहुत अच्छी है, you have good bone structure and lovely skin. So you don't need to gild the lily, you don't need to gild the lily by wearing makeup, by wearing makeup, by wearing makeup. तुमको मेकअप लगा के अपने आप को और बेहतर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर अच्छा है, तुम दिखने को ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, तो आपको मेकअप पोतने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मेकअप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू हैव गुड बोन स्ट्रक्चर एंड लवली स्किन, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर भी अच्छा है, तुम्हारी स्किन भी अच्छी है, जिस वजह से तुम ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हो। यू आर drop dead gorgeous, you're drop dead gorgeous. Now you don't need to gild a lily by wearing makeup, you don't need to gild a lily by wearing makeup. तुमको मेकअप लगा करके और ज्यादा खूबसूरत बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हो। एकता, ओके? You have good bone structure and lovely skin. This sentence is dedicated to Ekta, okay? You have good bone structure and lovely skin, so you don't need to gild the lily, you don't need to gild the lily, you don't need to gild a lily by wearing makeup. Gild a lily का मीनिंग होता है किसी बहुत अच्छी चीज को और अच्छा बनाना, और गिल्ड का मीनिंग होता है सोने की पॉलिश चढ़ाना किसी चीज पे। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि तुम्हारा नाक नक्शा ऑलरेडी से अच्छा है, पहले से ही अच्छा है, अब आपको मेकअप लगा के और ज्यादा खूबसूरत बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू गिल्ड अ लिली, ओके? कम ऑन, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट सेंटेंस, गिल्ड अ लिली का मीनिंग लिखिए। टू गिल्ड अ लिली मतलब किसी खूबसूरत चीज को और ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करना, किसी अच्छी चीज को और बेहतर बनाने की कोशिश करना। एवरी टाइम आई शो माई ब्रदर, अब यहां अगला सेंटेंस जो है टू पिक होल्स, टू पिक होल्स। मोस्ट वेलकम सौरभ, मोस्ट वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू। टू पिक होल्स, नेक्स्ट सेंटेंस इज टू पिक holes, to pick holes, to pick holes. इसका मीनिंग है किसी की गलतियां ढूंढना, गलतियां निकालना। टू पिक होल्स, किसी की गलतियां निकालना, किसी ने कोई काम किया उसमें जाकर के फॉल्ट्स ढूंढना, यहां ये ऐसा हो गया, वहां वो वैसा हो गया। ऐसा कहते हैं कि अगर आप कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो, एक बहुत अच्छी पेंटिंग बना करके अपने गांव में किसी चौक में, शहर के किसी चौक में जाकर के, चौराहे पे जाकर के उस पेंटिंग को लगा दो और वहां आप लिख दो कि फॉल्ट्स निकालिए, पिक द होल्स, वहां आप लिख दीजिए पिक द होल्स, एंड यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दे विल कम एंड पिक द होल्स। यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु विल कम देयर, दे विल लुक एट द पेंटिंग एंड दे विल पिक द होल्स, मीन्स दे विल फाइंड द फॉल्ट्स, दे विल फाइंड द फॉल्ट्स इन दैट पेंटिंग। एंड इफ यू टेल देम टू मेक करेक्शंस, देयर विल बी नोबडी। अगर आप उनको कहते हो कि जाइए आप करेक्शन करिए, या ऐसी एक पेंटिंग बना करके आप लगाइए, तो वो कोई नहीं करेगा। इट्स ऑलवेज ईजी टू पिक द होल्स, इट इज ऑलवेज ईजी टू पिक द होल्स, टू पिक द होल्स। तो ये एक शॉर्ट फ्रेज हो गया, टू पिक द HOLES होल्स, HOLES होल्स, HOLES होल्स। सो एक्चुअली ये पूरा फ्रेज जो है ना वो कुछ ऐसा है, टू पिक होल्स in someone's coat, to pick holes in someone's coat, to pick holes in someone's coat. Now इसका मीनिंग होता है किसी के कोट में कितने छेद है वो ढूंढना, किसी के कोट में कितने छेद है वो ढूंढना, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है
किसी की गलतियां ढूंढना, किसी की गलतियां ढूंढना. सो इट्स ऑलवेज इजी टू पिक द होल्स इन समवन्स कोट. किसी की गलतियां ढूंढना हमेशा आसान होता है. ओके, गलतियां ढूंढना हमेशा आसान होता है. सो द एग्जाम्पल सेंटेंस इज एवरी टाइम आई शो माई ब्रदर वन ऑफ माई पेंटिंग्स. एवरी टाइम आई शो माई ब्रदर वन ऑफ माई पेंटिंग्स. हर बार जब मैं अपने भाई को मेरी पेंटिंग्स में से कोई एक पेंटिंग दिखाता हूं, एवरी टाइम आई शो माई ब्रदर वन ऑफ माई पेंटिंग्स, he just picks holes. He just picks holes. He just picks holes without saying anything that he liked about it. Without saying anything that he liked about it. Without saying anything that he liked about it. जब भी मैं अपने भाई को अपनी पेंटिंग्स दिखाता हूँ तो उसमें वो गलतियां ढूंढता है. वो बोलता है नाक थोड़ा टेढ़ा हो गया, या फिर पेंटिंग में यहाँ पे ये वाला कलर नहीं वो वाला कलर चाहिए था. He always picks holes. And he never tells me what he liked about it. और उसको उसमें पसंद क्या है वो कभी नहीं बताता है. So this is habit of everybody actually. It's not about my brother, huh? It is just an example. So लोग गलतियां बहुत जल्दी ढूंढते हैं. People always pick holes. It is because it is easy. Because it is easy. It's always easy to pick holes. Great. Come on, let's move ahead. The tree was struck by lightning. The tree was struck by lightning. सिंपली आप बोलना चाहते हो उस पेड़ के ऊपर बिजली गिरी. उस पेड़ पर बिजली गिरी तो आप कह सकते हो द ट्री वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग. 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 उस पेड़ के ऊपर बिजली गिरी. The tree was struck by lightning. Struck is the third form of strike. Struck is the third form of strike. S-T-R-I-K-E strike का third form होता है S-T-R-U-C-K struck. S-T-R-U-C-K struck. Okay? The tree was struck by the lightning. Lightning यानी बिजली. Okay? पेड़ के ऊपर बिजली गिरी. द ट्री वॉज स्ट्रक बाय द लाइटनिंग. अगर आप कहना चाहते हो उसके ऊपर बिजली गिर गई और वो मर गया तो आप कह सकते हो ही डाइड बीइंग स्ट्रक बाय द लाइटनिंग. ही डाइड बीइंग स्ट्रक बाय द लाइटनिंग. ओके, ही डाइड बीइंग स्ट्रक बाय द लाइटनिंग. ओके, कम ऑन. The tree was struck by the lightning. He died being struck by the lightning. The tree was struck by lightning. Yeah, he died being struck by the lightning. Okay. Next one. What's there to cry? What's there to cry? What's there to cry? What's there to cry? इसमें रोने वाली क्या बात है? एक सिंपल सा सेंटेंस बहुत अच्छा. What's there to cry? इसमें रोने वाली क्या बात है? What's there to cry? इसमें रोने वाली क्या बात है? What's there to cry? अभी संख्या कम होती जा रही है. Stay tuned guys. Stay tuned. जो आखिरी तक टिकेगा वही विजेता. ओके, सो एक्चुअली इट डजेंट मैटर टू मी. संख्या बढ़ रही है कम हो रही है, इट डजेंट मैटर टू मी. बट इफ यू वांट टू लर्न, अगर आप सीखना चाहते हो अंत तक बने रहिए. ओके, वॉज देयर टू क्राई. नेक्स्ट वन. आई बम्प्ड इनटू हर ऑन द वे बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल. आई बम्प्ड इनटू हर. नाउ बम्प इनटू, बम्प इनटू, बम्प इनटू का मीनिंग होता है टकराना. आई बम्प्ड इनटू हर. सो यहां इस सेंटेंस में टकराना नहीं है इसका मीनिंग. बम्प इनटू के दो मीनिंग्स, एक होता है टकराना और दूसरा मीनिंग होता है किसी को अचानक से मिलना. कोई अचानक से मिल गया आपको कहीं, कोई आपका पहचान वाला इंसान अचानक से आपको कहीं और मिल गया. सो आई रिमेंबर एन इंसिडेंट व्हेन आई वेंट फॉर अप्लाइंग फॉर माई पासपोर्ट. अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जब मैं गया था, आई वॉज इन नागपुर. एंड व्हेन आई वेंट देयर, जस्ट यू कैन से बाई चांस आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स. मेरा एक दोस्त मुझे बाई चांस मिल गया, कोई प्लानिंग नहीं था हमारा. सो ऑन द सेम डे सेम टाइमिंग ही हैड एन अपॉइंटमेंट. उसका भी अपॉइंटमेंट था और अचानक से मुझे वो वहाँ मिला जहाँ पासपोर्ट्स के लिए एप्लीकेशन करनी होती है. ओके, सो आई जस्ट वेंट देयर एंड आई सॉ. अचानक से मुझे दिख गया. मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि कैसे गया. राइट, कोई प्लानिंग नहीं था, अचानक से एक ही टाइम पे हम लोग वहाँ पहुँचे. ओके, आई बम्प्ड इनटू माई चाइल्डहुड फ्रेंड. आई बम्प्ड इनटू माई चाइल्डहुड फ्रेंड. मैं अचानक से बाई चांस अपने बचपन के दोस्त को मिला, या मुझे मेरा बचपन का दोस्त अचानक से मिला. वर्ड्स डेयर नहीं साक्षी. इट इज नॉट डेयर, इट्स देयर. THERE.
THERE, there, what's there to cry, what's there to cry. इसमें रोने वाली क्या बात है? What's there to cry, what's there to cry. Okay, come on. I bumped into her. Now bump into का मतलब किसी को अचानक मिलना या टकराना, किसी को अचानक मिलना या टकराना. So अगर आप कहना चाहते हो मैं अपने बचपन के दोस्त को अचानक मिला, तो आप कहोगे I bumped into, bump का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. I bumped into my childhood friend. I bumped into my childhood friend. I bumped into my childhood friend. और फिर किसी जगह का नाम आप बता सकते हो कहाँ मिले. I bumped into my childhood friend on the way back from the hospital. On my way back from the hospital. On my way back from the hospital. जब मैं हॉस्पिटल से वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे मेरा बचपन का दोस्त अचानक से मिल गया. I bumped into my childhood friend on my way back from the hospital. Okay? Okay. Now another example. A car came in a very high speed. A car came in a very high speed and bumped into the tree. And bumped into the tree. एक कार बहुत तेजी से आई और एक पेड़ से जाकर टकरा गई. A car came with a very high speed and bumped into the tree. कार बहुत तेजी से आई और पेड़ से जाकर टकरा गई. तो यहां बम्प इंटू का मीनिंग हो गया टकराना. ओके, कम ऑन. भिड़ जाना, टकराना. पेड़ को जाके भिड़ गई या पेड़ को जाकर टकराई, बम्प इंटू. ओके, कम ऑन. नेक्स्ट वन, एवरीथिंग अंडर द सन. एवरीथिंग अंडर द सन, यहां इसका मीनिंग है जो कुछ पॉसिबल है वो सब कुछ. एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल. एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल. Everything under the sun, everything that is possible. Everything under the sun का मीनिंग होता है everything that is possible. हर पॉसिबल चीज, everything under the sun. हर वो पॉसिबल चीज, everything under the sun. So example is, I have tried everything under the sun on this stain. I have tried everything under the sun on this stain. But I just can't get rid of it. But I just can't get rid of it. I just can't get rid of it. Get rid of it. Everything under the sun. Everything under the sun का मीनिंग होता है everything that is possible. Everything that is possible. Everything that exists. Everything in the universe. ब्रह्मांड में हर वो चीज जो है या हर वो चीज जिसका अस्तित्व है या फिर हर वो चीज जो पॉसिबल है. I tried everything under the sun on this stain. Stain का मीनिंग होता है दाग. STAIN stain. STAIN stain. Stain मीनिंग दाग. आपकी शर्ट पे कोई दाग लग गया और आप बोल रहे हैं मैंने इस पे सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन ये दाग जाता ही नहीं. ये दाग जाता ही नहीं. I can't get rid of this stain. I can't get rid of this stain. I tried everything under the sun. है ना, जो भी मतलब वो टाइड डिटर्जेंट पाउडर हो या वॉशिंग पाउडर निरमा या फिर पता नहीं कौन कौन से पाउडर्स आते हैं, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, सारा ट्राई कर लिया लेकिन ये दाग इतना जिद्दी है कि जाता ही नहीं. आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस स्टेन. STAIN stain. Okay, fine. The session is about to end, guys. Stay tuned. Come on. 2 more sentences we are learning and then we will call it a session. 2 more sentences and then the session is over. Okay, come on. What a dope he is. What a dope he is. Next one. What a dope he is. यहां dope एक स्लैंग वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एक बेवकूफ इंसान. अगर आप कहना चाहो कितना बेवकूफ आदमी है यार, what a dope he is. कितना बेवकूफ आदमी है, what a dope he is. He is such a dope. एक नंबर का बेवकूफ आदमी है. He is such a dope. Okay. And the last one, weirdo. Actually और भी कुछ sentences है but it's high time. It's 5:54 and we cannot continue the session. Okay. Last sentence, that guy is real weirdo. That guy is real weirdo. बहुत अजीब आदमी है यार. That guy is real weirdo. बहुत ही अजीब आदमी है. That guy is real weirdo. Weirdo का मीनिंग होता है अजीब.
एक्चुअली वियर्ड मीनिंग अजीब होता है, लेकिन स्लैंग तरीके से स्लैंग इंग्लिश होती है जो मतलब यंग जनरेशन जो होती है, अमेरिकन यंग जनरेशन, वो इन वर्ड्स को यूज़ करती है, वियर्डो। एक नंबर का बहुत ही अजीब आदमी है, अगर आप कहें बहुत ही अजीब आदमी है। शिवानी, इट इज डोप, DOPE, DOPE, डोप। ओके, अ स्टूपिड पर्सन, DOPE, डोप मीन्स अ स्टूपिड पर्सन। व्हाट अ डोप ही इज, व्हाट अ एक नंबर का ढक्कन है, व्हाट अ डोप ही इज। एंड वियर्डो मीन्स अजीब, वियर्डो मतलब अजीब, अ स्ट्रेंज पर्सन, अ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब भी अजीब, वियर्ड मतलब भी अजीब, वियर्डो मतलब एक अजीब इंसान। ही इज सच अ वियर्डो, ही इज सच अ वियर्डो। ओके, ही इज अ रियल वियर्डो, दैट गाय इज अ रियल वियर्डो, दैट गाय इज अ रियल वियर्डो, एक नंबर का अजीब इंसान है। ओके गाइज, so I hope you enjoyed the session. We have learned around 25 sentences, I guess. Can anybody tell me how many sentences we have learned? Can anybody tell me how many sentences we have learned today? कितने sentences सीखे हम? As per जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, we have learned around 25, around 25. Okay, whatever. We have learned around 25 sentences and around 15 to 20 new words. And I hope you enjoyed the session. I hope you enjoyed the session. I hope you liked it. So just keep enjoying, keep learning. 21. Okay, Ganesh. 21 sentences we have learned. No problem. Okay. So keep attending the session every Sunday. Okay, Vipda says around 30. So my number was correct, is around 25. 25 हम सीखे, किसी ने 30 लिखे, किसी ने 21 लिखे, that's great, no problem. जो भी आपने लिखा है वो यूज करिए, प्रैक्टिस करिए, and you will be able to speak better. You will be able to use all these sentences if you practice. Okay, so see you on the next Sunday. Next Sunday फिर से live session, फिर से live session होगा जिसमें और कुछ नए sentences आप सीखेंगे. Stay tuned, keep learning. Thank you very much for showing up. Thank you very much for your valuable time. Thank you very much for your valuable comments. See you again on the next Sunday. Bye for now. Have a nice evening. Have a nice evening. It's raining outside, so though nobody wants to have the rainfall right now, कोई नहीं चाहता कि अभी बारिश आए, but still enjoy the rainfall. मजे लीजिए बारिश के. See you soon. Bye bye. Bye all of you.